Hello students, welcome back to our online classes. In our previous video, we have completed our lesson number 10, that is tenths and hundredths. Now, we'll start our new chapter, that is chapter number 11, area and its boundary. Okay, अभी हम क्या find out करेंगे? Area and boundary. We have already studied this in lesson number 3. Okay, for more details, you can refer that videos of lesson number 3 on YouTube. Now, in this chapter, we will find out the area and parameter by using formulas. We have to apply formula. In previous lesson, we just count the squares or the outer surface, outer line to find out the parameter and count squares to find out the area. But now, here measurement is given and we have to find out the area and parameter by that measurements. So, formula to find area of square. Square का area कैसे निकालेंगे? Now square, all the sides are equal. Okay, square क्या होता है? जिसकी सारी sides क्या होती है? Equal होती है. Length is equal to breadth. So the area of the square is equal to L into L or side into side. Means जो भी length है उसको, जो भी हमारे पास मेजरमेंट गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में. ओके, जो भी साइड का मेजरमेंट गिवन है. सपोज फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉक्स हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर. सो स्क्वायर बॉक्स है, लेंथ 4 है, मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर 4 सेंटीमीटर. सो वी विल फाइंड आउट द एरिया बाय मल्टीप्लाई 4 into 4. रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? यस, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ. लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी. For that we have to multiply length into breadth. हमें length और breadth को हम multiply करेंगे and we get the area of the rectangle. Now formula to find parameter. Okay, अभी किस चीज का formula लिखेंगे हम? To find parameter. Square का क्या होगा? 4 into length. ठीक है, तो हम square का formula जो है पैरामीटर फाइंड आउट करने का वो होगा 4 into लेंथ और 4 into साइड्स. रेक्टेंगल का क्या होगा? 2 into ब्रैकेट में L प्लस B. मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. सो दीज आर द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. नाउ चिल्ड्रन, सी द क्वेश्चन. Mahesh Bhai decided to fit square tiles on the floor. Now the shape of the tiles are square. Each tile measures 10 centimeter of length. Means the side of the tile is 10 centimeter. जो टाइल है उसका एक साइड कितना है? 10 centimeter. If the length of the floor is 150 centimeter, फ्लोर की लेंथ 150 centimeter है and its breadth is 100 centimeter. Then how many tiles would be needed? Now see, tiles जो है that are of square shape and the floor is of length is different, breadth is different. So the square is of rectangle shape. ठीक है, tiles जो है वो square shape की है, floor जो है वो rectangle shape का है. Now how many tiles would be needed? कितनी tiles चाहिए होगी? ओके, फ्लोर में लगाने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए होगी? सो फर्स्ट थिंग वी विल डू, वी जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द टाइल एंड द एरिया ऑफ फ्लोर. हम क्या करेंगे? टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी डिवाइड द एरिया ऑफ फ्लोर बाय द एरिया ऑफ टाइल्स एंड देन विल गेट द आंसर दैट दिस मैनी टाइल्स वुड बी नीडेड. ओके, हम क्या करेंगे? दोनों एरियाज फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिवाइड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइल्स. नाउ हियर इज द सॉल्यूशन. फर्स्ट, लेंथ ऑफ द टाइल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और टाइल क्या है? इट इज इन स्क्वायर शेप. सो देयरफॉर इट्स एरिया L into L means side into side. So we get 100. Now see, centimeter square. Unit of the area इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर एटसेट्रा. हमेशा जो है स्क्वायर में आएगी. बिकॉज क्या हो रहा है? हम 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मतलब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. और कितनी बार हो रहा है? 2 बार. सो इट बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर.
So the area of tile is 100 centimeter square. Length of the floor 150 centimeter, breadth of the floor 100 centimeter. Therefore its area A2. It is A1, it's A2. L into B, that is equal to 15,000 centimeter square. Okay, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक टाइल का एरिया और ये आया फ्लोर का एरिया. नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड कितनी है? वी विल डिवाइड द एरिया ऑफ फ्लोर बाय द एरिया ऑफ टाइल. सो इट विल बी 15,000 डिवाइडेड बाय 100. 20 कट बाय 20, रिमेनिंग आर 150. सो 150 tiles would be needed. Okay. Now see the next question. The length of fencing around a square is 24 centimeter. 24 centimeter. What is the length of one side of the garden? Okay. Now garden is in square shape. अभी क्या है? The length of fencing around a square garden is 24 centimeter. Now what is 24 centimeter? What is it? क्या बोल रहे हैं? The length of fencing. यहाँ पे एक गार्डन है, समझ लो ये गार्डन है, यहाँ पे फूल लगे हैं, तो इसके अराउंड एक फेंसिंग की गई है. दिस फेंसिंग ये कितनी है टोटल? दिस इज ऑफ 24 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट? सॉरी, इट इज 24 मीटर. सॉरी, इट इज 24 मीटर. सो ये 24 मीटर जो है ये क्या है? इज इट एरिया और पैरामीटर? यस, इट इज पैरामीटर. पैरामीटर क्या होती है? बाउंड्री. सो दिस इज पैरामीटर. नाउ how to find out the parameter of square? Yes, we know that is 4 into L. अभी हमें क्या निकालना है? What is the length of one side of the garden? So we have to find out the length. Okay. Now here is the solution. Parameter of the garden is equal to 24 meter. So what is the formula? Parameter of square is equal to 4 into L. So 4 into L is equal to 24 मीटर. अभी देखिए यहाँ पे 4 into L मतलब 4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर हम इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो 4 क्या आ जाएगा? डिवाइड में. ओके. अभी यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आ जाएगा तो हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके. सो L is equal to 24 upon 4. तो 4 6 are 24. So answer will be 6 meter. So the length of one side of the garden is 6 meter. Now the next question. A rectangle is made from 20 centimeter long wire. If the breadth of the rectangle is 3 centimeter, then what is its length? अभी क्या बोल रहे हैं? 20 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल बना हुआ है. मीन्स ऐसे कोई रेक्टेंगल है. सो ये जो वायर है, लेट इट बी वायर, ये जो है ये वायर है, ये कितनी है? इट इज 20 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज इट? ये 20 सेंटीमीटर क्या होगा? यस, इट्स द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि वो बनाई हुई है आउटर सरफेस, द बाउंड्री. एंड इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स लेंथ? द सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे रेक्टेंगल का, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देन वी विल फाइंड आउट द लेंथ. नाउ हियर इज द सॉल्यूशन. पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, इट इज गिवन. So parameter of the rectangle formula is equal to 2 into L plus B. हम लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. So 2 into L plus B is equal to 20. अभी 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है. तो 2 into L plus B कितना है हमारे पास? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3. वी पुट 3 ओवर हियर. सो L plus 3. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में. इक्वल के इस तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड में. 2 10 जा 20. सो L plus 3 is equal to 10 सेंटीमीटर. अभी L plus 3 क्या है? एडिशन में है, तो जो 3 है यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में. सो L is equal to 10 minus 3 सेंटीमीटर. Therefore length of the rectangle is equal to 7 centimeter. Now the next question. If the parameter of a parameter of a square carom board is 200 centimeter, then what is the area? अभी क्या बोला गया है? एक कैरम बोर्ड का पैरामीटर दिया गया है, दैट इज 200 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया. मतलब कि ये कैरम बोर्ड है. ओके. तो कैरम बोर्ड की ये चीज हमें दी हुई है, बाहर की
बाउंड्री हमें दी हुई है और हमें ये फाइंड आउट करना कि हाउ मच इट इज. सो हाउ टू फाइंड इट आउट? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स लेंथ, किसकी साइड कितनी है. आफ्टर गेटिंग साइड वी कैन इजिली फाइंड आउट इट्स एरिया. Now here is the solution. Parameter of the square is equal to 200 centimeter. It is given. Its formula is equal to 4 into L. 4 into L is equal to 200. अब 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवीजन में. सो L is equal to 200 divided by 4 centimeter. So the answer will be L is equal to 50 centimeter. जब हम 200 को 4 से डिवाइड करेंगे we get the answer 50. Therefore its area. अभी एरिया क्या होता है, we know side into side means L into L, that is 50 into 50 centimeter square. So 50 into 50, हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, we get the answer 2500 centimeter square. Therefore area of the carom board is equal to 2500 centimeter square. So here are the questions in which we are applying the formulas. Okay.